So the next thing that we are going to see is curves. जो हमने फिगर्स स्टार्ट किए थे ज्योमेट्री के, उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट चीज आ रही है दैट इज कर्व्स. नाउ कर्व्स कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एज we'll see the definition, you'll understand. It's a simple thing. A curve is a figure which is drawn without lifting our hand or without measurement. So if I'm starting from a point and I'm drawing something and I'm moving in any direction, I'm not measuring it, what I'll get a curve. So in that way I can form any number, any kind of figure. So all those figures will be what? Curves. So here some examples I have drawn. All are curves, but in these examples, using these examples, we will see the types of curves, which are simple curve, complex curve, open curve, closed curve. So it can be a simple curve, can be open, it can be closed, like this. These are two types. These are two types based on different things. How we'll see with the help of these examples. So to get what curves are, simple thing, all these figures will be curved. But in that types of figures, if we talk, what are curve, what are simple curve, what are complex curve. So starting with, if we talk about simple and complex, it's a simple thing. If the figure is crossing the lines, crossing it itself anywhere, it is going to be complex. If it is not crossing, it is going to be simple. So this, see, you can see here it is crossing. So this is a complex figure, complex curve. Then here this is not crossing itself, it's not passing through the lines. ये lines pass हो रही है, यहाँ पे कोई भी लाइन पास नहीं हो रही है, यहाँ भी कोई लाइन पास नहीं हो रही है, यहाँ भी कोई लाइन पास नहीं हो रही, यहाँ लाइंस पास हो रहे हैं एक दूसरे से. So these two are complex. So if I write here, this is a complex curve. We'll also write about it open or closed later. First let's write G, complex or simple. This is a simple curve. This is also a simple curve. This is a complex curve. And this is a simple curve. So I think it's very simple thing. If it's crossing itself, it's going to be complex. If it is not crossing, it is going to be simple. Next is open or closed. Now, if we talk about open and closed, if by seeing also you can understand, but by definition if we go, if the starting and ending point of the figure of the curve is same, it is a closed figure. क्लोज, अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है तो, अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स इट विल बी ओपन. जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है तो एंड पॉइंट ये है, सेम नहीं है, मींस दिस इज अ ओपन फिगर. यहाँ पे अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहीं पे एंड किया है, सो इट इज अ क्लोज्ड फिगर. कैन बी एनीवेयर, कहीं पे भी स्टार्ट हो, बट अगर सेम जगह पे एंड हुआ है, सो दैट इज द क्लोज्ड फिगर, क्लोज हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो, कहीं पे मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से किया, बट एंड पॉइंट भी वही आ रहा है, देयरफॉर इट्स अ क्लोज्ड फिगर. दिस इज कॉम्प्लेक्स है, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है बट ओपन, ये भी कॉम्प्लेक्स है ओपन है. सो और अगर एग्जांपल देखें, दिस इज ओके, दिस इज क्लोज्ड. नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि सिंपल है तो क्लोज्ड ही रहेगा. If I draw a figure, this is simple है and it is open. ये कॉम्प्लेक्स है ओपन है, ये सिंपल है ओपन है, ये सिंपल है क्लोज है. सो अगर सिंपल में ही मैं कॉम्प्लेक्स फिगर अगर मैं बनाऊं, दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है बट ये क्लोज भी है.
So ऐसा कोई जरूरत नहीं होगा, नेसेसरी नहीं होगा कि सिंपल है तो क्लोज ही रहेगा. इट कैन बी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एंड क्लोज ऑल्सो. सो कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है. सिंपल कैन बी ओपन, सिंपल कैन बी क्लोज, कॉम्प्लेक्स कैन बी ओपन और कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लोज. दोनों की पॉसिबिलिटीज हो सकती है. सो एनी कॉम्बिनेशन कैन बी देयर. सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से देखना है. सिंपल मीन्स जो क्रॉस नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स मीन्स जो क्रॉस होगा. एक सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज क्लोज क्योंकि स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम है, एंड दिस इज ओपन बिकॉज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम नहीं. सो दैट विल बी जस्ट ऑल अबाउट कर्व्स, एंड दोज आर द टाइप्स ऑफ कर्व्स. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एनी फिगर, एनी कर्व, ईच एंड एवरी फिगर इज हैविंग 3 पार्ट्स. जो पार्ट्स होते हैं फिगर के, वो क्या पार्ट्स होते हैं? इंटीरियर ऑफ द फिगर, एक्सटीरियर ऑफ द फिगर एंड बाउंड्री ऑफ द फिगर. हम इस बोर्ड की बात करें, सो ये सर्कुलर जो ग्राउंड अप मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इट इज डिवाइडिंग द बोर्ड इन 3 पार्ट्स. वन विच इज इन द फिगर, वन विच इज आउटसाइड द फिगर, एंड द थर्ड विच इज इट्स बाउंड्री, इट्स आउटसाइड लाइन. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ फिगर. कोई भी फिगर हो, कैन बी एनी फिगर. So if you're talking about this, so point with respect to this figure, point A, B and X are in the interior. Point in the exterior are point Q and R, and point P is on the boundary. So that's how we define the regions. So ये है इंटीरियर है, बाउंड्री है और एक्सटीरियर. ऐसे 3 पार्ट्स हमको मिलते हैं हर फिगर में. क्लोज फिगर की बात कर रहे हैं, ओपन फिगर में भी मिलेंगे, बट ओपन फिगर का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि नाउ इफ यू आर हैविंग दिस फिगर, सो इंटीरियर और एक्सटीरियर एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, राइट? बट इन दैट आल्सो विल हैव, जब हम और आगे देखेंगे कुछ फिगर्स तो उसमें आएगा, एट दैट टाइम विल सी. बट एज ऑफ नाउ क्लोज फिगर के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ फिगर, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द फिगर, जो कि हर क्लोज फिगर में हमको मिलेगी. और उसमें हमको एक और चीज मिलती है जो फिगर के हिसाब से देखा जाए तो वो होता है रीजन ऑफ अ फिगर. that is given by the interior and the boundary. रीजन यानी कि उस फिगर का पार्ट है, उस फिगर का उसको बोल सकते हैं कि उस फिगर की प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि वो उसका इंटीरियर है और उसकी बाउंड्री है. जैसे कि अगर आपका घर है, सो आपका घर वो आपका एक इंटीरियर है, और जो वॉल्स आपने बनाई हुई है या पार्किंग के एरिया के बाहर आपने जो वॉल्स बनाई है वो आपका क्या हो जाएगा? वो भी आपका ही है. जो बाउंड्री आपने बनाई है वो भी आपकी है. सो दैट्स हाउ इंटीरियर and the boundary of the figure gives the region of the figure or the curve. With respect to curves, let's see, there are 2 variations which can be defined using if the figure is drawn using all the line segments, or it is having either line segments plus line curves or only curves. So in simple words, if we talk, curvilinear means the figure will have कर्व पार्ट्स. उसकी जो बाउंड्रीज रहेगी, फिगर की जो बाउंड्रीज रहेगी, इट विल हैव कर्व्स. जैसे कि यहाँ पे ये कर्व पार्ट स्ट्रेट नहीं, ये रादर हियर सारे के सारे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है. सो इफ द फिगर इज हैविंग ऑल लाइन सेगमेंट्स, इट विल बी अ लीनियर बाउंड्री फिगर. इफ इट इज हैविंग कर्व्ड बाउंड्रीज, इट विल बी अ कर्वीलिनियर. सो ये हो जाएगा कर्वीलिनियर, क्योंकि इसमें कर्व्ड पार्ट है. यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि लाइन सेगमेंट प्लस कर्व्ड हो. यहाँ पे अगर इस तरह से सभी कर्व्ड है तो भी वो कर्वीलिनियर में आएगा, बट यहाँ पे सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स होना जरूरी है. देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ लीनियर फिगर, लीनियर बाउंड्री कर्व. सो दैट विल गिव अस ऑल लाइन सेगमेंट्स लीनियर
Here curvilinear means it will have curved parts. ये हो गया, और अगर हमने ऐसे भी ड्रॉ किया है, I have made the edges rounded, so it will be line segments तो है, but edges में curved part आ गया, round हो गया, therefore it will be a curvilinear figure. Let's solve some questions based on what we have seen, curves. So first one is identify open or closed figure. Open or closed curves देखने हैं. We have seen if the figures starting and ending point of the curve is same, it is closed. If it is not same, it is open. So this is an open figure. Starting and ending point are different. Second, start and end point are same, so therefore closed. Same starting and ending point is same, so it is closed. Here it is open end is there, and this is closed. Next question we have, draw the figure. Draw one open and one closed figure in the notebook. So open curve, you can draw in any form, anywhere you want, anyhow you want. So it will be an open figure, and closed will be a closed figure. So this is second question ka part. We have to draw, so this is open and this is closed.